ایران کا نیا سپریم لیڈر آیت اللہ العظمی سید مجتبی خامنہ ای. Somebody takes over who's as bad as the previous. مجتبی علی خامنہ ای. سید مجتبی حسینی خامنہ ای، جسے پچھلے کئی سالوں سے نہ کبھی کسی نے دیکھا ہے اور نہ اس کی آواز سنی، لیکن جیسے ہی اس کا نام سپریم لیڈر کے لیے سامنے آیا، امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ اس نام کو سنتے مجتبی خامنہ ای. اسے ریجیکٹ کر دیا. Donald Trump says he's not happy with the appointment of Mojtaba Khamenei as Iran's new supreme leader. I always say that would be about the worst. کیونکہ عام لوگ تو اس مجتبی کو نہیں جانتے، لیکن امریکہ کی CIA اور اسرائیل کی موساد کو اچھی طرح پتا ہے کہ مجتبی خامنہ ای آخر ہے کون، اور انہیں پتا ہے کہ اس سے پہلے مجتبی کا باپ علی خامنہ ای ایک بہت ہی سمپل اور سافٹ انسان تھا، لیکن اب یہ نیا سپریم لیڈر مجتبی خامنہ ای اپنے باپ کے بالکل اپوزٹ ہے، بلکہ وہ بچپن سے ایران کی فوج میں ایک سولجر کی طرح لڑتا رہا ہے. ایران کی پوری فوج انہیں ہی اپنا اصل لیڈر مانتی ہے، اور اب ایران میں پہلی بار ایک ایسا سپریم لیڈر آیا ہے جو ایک عالم اور اسکالر سے زیادہ ایک واریر سپریم لیڈر ہے. لیکن آخر مجتبی خامنہ ای یہاں تک پہنچا کیسے؟ آج سے آلموسٹ 50 سال پہلے جب ایران میں ایک بہت ہی کرپٹ بادشاہ رضا شاہ کا راج تھا، most prosperous countries of the world. اسی کرپٹ بادشاہ کو چیلنج کرنے کے لیے ایران میں ایک نیا لیڈر سامنے آیا، آیت اللہ خمینی. آخر خمینی کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ ایران کا بادشاہ مجبوراً ایران کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے بھاگ گئے، The Shah and his family leave Iran. اور اس طرح خمینی ایران کا پہلا سپریم لیڈر بنا. جیسے ہی خمینی ایران کا سپریم لیڈر بنا، دنیا کی کوئی بھی سپر پاور اسے پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ باقی مسلمان لیڈرز کی طرح امریکہ کے جوتے پالش کرنے کے بجائے سیدھا امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دھمکیاں دیا کرتا تھا. اسی لیے امریکہ، اسرائیل اور باقی سارے لیڈرز پہلے دن سے خمینی سے اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے، اور آخر انہیں یہ راستہ مل گیا. ایران کے پاس ایک ملک عراق میں ایک نیا لیڈر آیا جو ان سپر پاورز کے لیے خمینی پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا، اور اس لیڈر کا نام تھا صدام حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی کے ساتھ صدام حسین نے ایران کے خمینی پر حملہ کر دیا Iraqi tanks ground across the border into Iran. اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ شروع ہوئی. لیکن جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، اچانک ایران کے پریزیڈنٹ کو ایک دھماکے میں مار دیا گیا، جس کے بعد ایران کا نیا پریزیڈنٹ علی خامنہ ای بنا. تو اب جب خامنہ ای صدام حسین کے ساتھ جنگ میں بزی تھا، ان کے گھر میں ان کا 12 سال کا بیٹا مجتبی بالکل عام بچوں کی طرح اسکول جایا کرتا تھا، اور مجتبی بچپن سے ایران کی اس اتنی بڑی جنگ کو غور سے دیکھ رہا تھا. مطلب مجتبی کا سارا بچپن ایک جنگ کے بیچ میں ہی گزرا تھا. اور آخر جیسے ہی مجتبی کی عمر 17 سال ہوئی، مجتبی بھی ایک عام سولجر کی طرح ایران کی فوج میں شامل ہوا اور صدام حسین کے خلاف جنگ میں لڑنے لگا. اس وقت مجتبی خامنہ ای ایران کے پریزیڈنٹ کا بیٹا تھا، لیکن کہا جاتا ہے تب بھی وہ بالکل ایک عام سولجر کی طرح جنگ کے فرنٹ لائنز میں جا کر لڑا کرتا تھا. اسی طرح مجتبی ایران کی آرمی میں اپنے بٹالین کے ساتھ عراق کے اندر گھس گئے، اور عراق میں گھس کر مجتبی اور اس کے ساتھیوں نے عراق کے 30 پہاڑوں پر ایران کا جھنڈا لہرایا. لیکن اب جب یہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اچانک عراق اور ایران نے اس جنگ کو
खत्म करने का फैसला किया और सारी फौजें अपनी जगहों पर वापस चली गई, जिससे ये 8 साल की जंग खत्म हो गई। लेकिन इस जंग के सिर्फ 1 साल बाद ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी इस दुनिया से चले गए। अब यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि आखिर ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा। इसीलिए ईरान की 86 सबसे बड़े स्कॉलर्स एक मीटिंग के लिए जमा हुए और नए सुप्रीम लीडर के लिए वोटिंग शुरू हुई। इस इलेक्शन में 86 में से 60 बड़े स्कॉलर्स ने अली खामेनाई को वोट दिया, जो 70% वोट बनता था, और इसी के साथ अली खामेनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने। रहबरी सूरी ख्वाहत न रहबरी वाकई। अब मुज्तबा सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ ईरान का नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान का बेटा था। लेकिन कहा जाता है वो फिर भी अपने बाप के साथ नहीं बल्कि उसी तरह ईरान की फौज में रहा, और इसी तरह अगले 10 साल तक ईरान की फौज और मुज्तबा खामेनाई का आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक बन गया। और अब तक मुज्तबा एक स्कॉलर की तरह नहीं बल्कि हमेशा ईरान के एक फौजी का यूनिफॉर्म पहना करता था। आखिर 10 साल तक ईरान की फौज में रहने के बाद मुज्तबा एक फौजी होने के साथ साथ एक स्कॉलर बनने की भी तैयारी करने लगा, जिसके बाद मुज्तबा को हर जगह पहली बार ऐसे कपड़ों में देखा जाने लगा। इस तरह मुज्तबा ईरान के बड़े बड़े स्कॉलर्स का स्टूडेंट बना। अब जब मुज्तबा यहां पढ़ रहा था, इसी दौर में इराक के सद्दाम हुसैन और अमेरिका की भी दुश्मनी शुरू हो चुकी थी। In the early stages of military operations to disarm Iraq. और सद्दाम अब बिल्कुल बदल चुका था और वो भी अब अमेरिका को धमकियां दिया करता था। इसीलिए सद्दाम की धमकियों के बाद अब अमेरिका सद्दाम को भी हटाना चाहता था। Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. इसीलिए अमेरिका और इजराइल मिलकर सद्दाम पर बार बार झूठे इल्जाम लगाने लगे कि सद्दाम हुसैन इराक के लिए एटम बॉम्ब बनाने वाला है। सद्दाम हुसैन बार बार कहता रहा कि उसके पास कोई एटम बॉम्ब नहीं है, लेकिन तब भी अमेरिका ने उसकी नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत के साथ इराक पर हमला कर दिया। और इराक में लाखों लोगों को मारने के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि ये सब बस झूठ था और इराक में कोई एटम बॉम्ब था ही नहीं। लेकिन अमेरिका और इजराइल अब भी नहीं रुके और इराक के बाद अब ईरान पर भी इल्जाम लगाने लगे कि ईरान भी एटम बॉम्ब बनाने वाला है। ये देखकर ईरान के बड़े स्कॉलर्स में एक बहुत बड़ी डिबेट स्टार्ट हुई कि अब हमें क्या करना चाहिए। कुछ ने कहा कि हमें एटम बम नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कुछ ने कहा कि अगर हम एटम बम बनाए या ना बनाए, एक दिन अमेरिका हम पर हमला जरूर करेगा, इसीलिए हमें एटम बम बनाना चाहिए। आखिर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई ने ये डिबेट्स खत्म कर दी और पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि ईरान कभी भी एटम बम नहीं बनाएगा, क्योंकि एटम बम बनाना इस्लाम में हराम है। लेकिन अली खामेनाई के इस फतवे से ईरान में हर कोई खुश नहीं था, बल्कि कुछ बड़े स्कॉलर्स ऐसे थे जिनका अब भी यही ख्याल था कि ईरान को एटम बम बनाना चाहिए। और कहा जाता है इन्हीं स्कॉलर्स के साथ खामेनाई का अपना बेटा मुज्तबा खामेनाई भी था, जो चाहता था कि ईरान भी एटम बम बनाए। लेकिन इस बात का ना ईरान में और ना ईरान से बाहर किसी को पता था, बल्कि अब तक सिर्फ कुछ पिक्चर्स के अलावा मुज्तबा खामेनाई को ना कभी किसी ने देखा था और ना सुना था। मुज्तबा सुप्रीम लीडर का बेटा होने के बाद पूरी दुनिया से बिल्कुल गायब था। लेकिन आज से 20 साल पहले अचानक दुनिया की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन विकीलीक्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए, जिनमें लिखा था कि मुज्तबा खामेनाई मीडिया में तो किसी को नहीं दिखता, लेकिन असल में मुज्तबा खामेनाई ईरान के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है, जिसे ईरान की फौज एक केपेबल और फोर्सफुल लीडर मानती है। और इन डॉक्यूमेंट्स में आज से 20 साल पहले लिखा था कि हो सकता है आगे जाकर एक दिन मुज्तबा खामेनाई पूरे ईरान का सुप्रीम लीडर बने, सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई, क्योंकि उसके पास अभी से ईरान की फौज
और ईरान की इंटेलिजेंस पर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और इन लीक्स के अंदर यह भी लिखा था मुज्तबा खामेनाई का ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम मतलब एटम बॉम्ब के साथ एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है। और यही से अमेरिका और इजराइल आज से 20 साल पहले से मुज्तबा खामेनाई के हर स्टेप को गौर से मॉनिटर करने लगे। लेकिन इन लीक्स के बाद भी मुज्तबा खामेनाई पूरी दुनिया के कैमरों और मीडिया से हमेशा दूर रहा। और पिछले 15 सालों से मीडिया में मुज्तबा खामेनाई की इन कुछ तस्वीरों के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन दुनिया की मीडिया से गायब होने के बाद भी आज से कुछ साल पहले अमेरिका ने मुज्तबा खामेनाई पर भारी सैंक्शंस और पाबंदियां लगाई, क्योंकि उन्हें पता था कि मुज्तबा खामेनाई का अब भी ईरान की फौज और इंटेलिजेंस पर एक बहुत बड़ा कंट्रोल है। और आज से कुछ साल पहले जब इजराइल बार बार कहने लगा कि अब वो ईरान पर हमला करके रहेगा, जिसके लिए वो अमेरिका पर प्रेशर डालने लगा कि वो भी ईरान पर हमला करे, ये देखकर ईरान के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि हमें पता है कि हमारे सुप्रीम लीडर का एटम बॉम्ब बनाने के खिलाफ एक फतवा है, हराम है। लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल हमें इसी तरह हर तरफ से घेरते रहे और हमारे लिए सारे रास्ते बंद करते रहे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि बिल्कुल एक कॉर्नर टाइगर की तरह हमें अपने एटम बॉम्ब के प्रोग्राम को दोबारा शुरू करना होगा। और आखिर सुप्रीम लीडर के एडवाइजर अली लारिजानी ने ऐलान किया कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हमारे पास भी और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन तब भी अमेरिका ने ईरान की बात नहीं मानी और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। और इस हमले के पहले ही दिन मुज्तबा खामेनाई ने अपने बाप और सुप्रीम लीडर अली खामेनाई को खो दिया। Khamenei is dead. इन हमलों में मुज्तबा की मां भी इस दुनिया से चली गई और फिर मुज्तबा की बीवी भी इन हमलों में शहीद हो गई और इन हमलों में उनका बेटा भी शहीद हो गया। मतलब सिर्फ कुछ ही दिनों में मुज्तबा की फैमिली के 3 जनरेशंस शहीद कर दिए गए। अब अली खामेनाई के बाद जब ईरान का कोई भी सुप्रीम लीडर नहीं था, कहा जाता है ईरान के सारे लोग सिर्फ एक ही आदमी की तरफ देख रहे थे जो इस जंग के दरमियान खड़ा हो और दोबारा ईरान का झंडा उठाकर ईरान के लोगों को अमेरिका और इजराइल से बचा सके। इसीलिए ईरान के सड़कों और बाजारों में हर जगह लोग मुज्तबा खामेनाई के नारे लगा रहे थे। लेकिन वहां इजराइल ने भी ये ऐलान किया था कि अली खामेनाई के बाद जो भी ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा हम उसे भी बिल्कुल पहले की तरह मार डालेंगे। लेकिन मुज्तबा अपनी पूरी फैमिली को खोने के बाद अब पीछे हटने वाला नहीं था। इसीलिए ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुनने के लिए एक बार फिर उसी तरह स्कॉलर्स जमा हुए जिस तरह आज से 40 साल पहले खुमैनी के फौत होने के बाद जमा हुए थे। ये देखकर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर मुज्तबा खामेनाई सुप्रीम लीडर बन गया तो हम ईरान के इस फैसले को नहीं मानेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप मुज्तबा को रोकने के लिए बार बार धमकियां देने लगा। लेकिन इन धमकियों के बाद भी ईरान के स्कॉलर्स नहीं रुके और 88 स्कॉलर्स ने वोट देकर ऐलान किया कि आज के बाद ईरान का नया सुप्रीम लीडर कोई और नहीं बल्कि अली खामेनाई का बेटा होगा, सैयद मुज्तबा अली खामेनाई। सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई। सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुज्तबा खामेनी की बायोग्राफी आप सबको कैसा लगा जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।